Hello viewers, my name is Dr. Hatte. I am the representative of the class Surita Classes and Career Academy. By profession, I am doctor, so I should give you some tips regarding the COVID-19 virus. There are some simple tips. You should sanitize your hands regularly after some 13 to 35 minutes or wash it with some soap or hand wash. Secondly, use mask at public places. Third, keep social distancing and follow the protocols of government. Please cooperate with them, stay home, safe and be safe. Now, I am going to represent you today the lecture of locomotions and movement of biology standard 11th. In the starting phase of lecture, there will be all images and animations from introduction and all things will be given to you in the slide representation. After that, I had explained you what are the basic concept of this lecture. My lecture will be start within few minutes after this introduction. Catch this frisbee, Aryan. I get it. Now it's your turn to grab the frisbee. I will catch it. Do not get hurt yourself. Oh, it's paining. Aryan, see, a layer is formed over the injury and bleeding also stops. How it occurs? Yes, our body has its own mechanism to act on the injuries and it forms a layer of protein over the damaged area which prevents the loss of blood. Wow, it's quite interesting. Will you tell me more of it? Sure. In this lesson, you will learn about body fluids and circulation in human body. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to describe blood and its components, explain groups of blood, explain coagulation of blood, know about lymph, describe circulatory pathways, explain cardiac cycle, define cardiac output, define electrocardiograph, briefly explain double circulation, discuss regulation of cardiac activity, discuss disorders of circulatory system. Blood. Blood is an opaque red fluid freely flowing and has high density and more viscosity than water. It consists of plasma and formed elements. Plasma. Plasma is a liquid portion of the blood, is complex solution containing more than 90% water and about 6 to 8% of proteins. The proteins in plasma are fibrinogen, globulins and albumins. Fibrinogen helps in blood clotting. Globulins are involved in defense system of the body and albumins are responsible for maintaining water balance in the blood. Without plasma, blood cells cannot travel throughout the body. The clear liquid that separates from blood on clotting is called serum. Formed elements. Formed elements include erythrocytes, leukocytes, and platelets. Erythrocytes. These are also called as red blood cells. These are the most bounteous among all the cells in human body. The function of the red blood cells and hemoglobin is to carry oxygen from the lungs to all the body tissues, and it also transports carbon dioxide, a waste product of metabolism, to the lungs, where it is excreted. Leukocytes.
Leukocytes or white blood cells are the cells of immune system that fight against infection and protect our body from infectious diseases and foreign materials. White blood cells are of two types: granulocytes and agranulocytes. Granulocytes include neutrophils, eosinophils, and basophils, whereas agranulocytes include lymphocytes and monocytes. Neutrophils and monocytes are phagocytic in nature. Basophils are 12 to 15 microns in diameter and produce heparin, histamine, etc. These are the chemicals which induce inflammation. Eosinophils are formed in the bone marrow. It acts as anti-parasitic and participate in allergic reactions. Lymphocytes are of two types, B and T lymphocytes. They fight with diseases. Platelets. Blood platelets are also called thrombocytes because they secrete thromboplastin. These are smallest blood corpuscle. Blood platelets are non-nucleated, oval, biconvex disc-like bodies. Their number varies from 0.15 to 0.40 million per cubic millimeter of blood. Blood platelets produced from the cytoplasm of large megakaryocyte cells of bone marrow. Assessment. Before proceeding further, let us know how much you have learned. Click true or false. Blood groups. There are two groups of blood. They are ABO and RH. ABO grouping. On the basis of antigen and antibody, there are four types of ABO grouping, that are A, B, AB, and O. From the table we can say that the person with O blood group can donate blood to any other blood group, so the person with O blood group is called universal donor. And the person with AB blood group can receive blood from any other blood group. Hence, the person with AB blood group is called universal recipient. RH grouping. RH factor is an antigenic protein present on the surface of erythrocytes. It was first found in a rhesus monkey. If Rh antigen is present, then those persons are called Rh positive, and if Rh antigen is absent, then those persons are called Rh negative. Rh group should be matched before blood transfusion, because if Rh negative person is exposed to Rh positive blood, then person with Rh negative blood start forming antibodies against Rh antigens. If pregnant mother has Rh negative blood and fetus has Rh positive blood, then there is no major problem in the first delivery. But during first delivery, the fetus blood intermingle with mother's blood and the mother's blood start forming antibodies against Rh factor in her blood. In the subsequent delivery, there is possibility that Rh antibodies from the mother leaks into the blood of the fetus and destroy the RBCs of the fetus. This is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by treating mother after the delivery of first child. Coagulation of blood. Coagulation of blood is the process of conversion of blood from liquid form into solid form.
When the blood comes out of an injured blood vessel, the platelets clump together, break and release platelets factors. The prothrombinase initiates the conversion of prothrombin of the plasma into thrombin. The enzyme thrombin is used to catalyze the conversion of soluble protein fibrinogen into insoluble protein fibrin, and it forms network over the injury. Calcium ions are necessary for the coagulation of blood. चलो, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा, बाकी की चीजें आपको पूरे इसमें प्रेजेंट ही है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ब्लड बोले तो क्या, ब्लड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लड क्या कैरी करता, ऑक्सीजन कैरी करता। क्या कैरी करता, ऑक्सीजन कैरी करता। कहाँ पे, पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी में। तो सेल बोले तो क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेल। Blood is an opicrate fluid and has high density and more viscosity than water. It consists of plasma and formed element. इसमें ऑपिक्रेट फ्लूइड बोले तो कौन सा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है किससे, विस्कोसिटी ऑफ वाटर से। विस्कोसिटी बोले तो क्या, विस्कोसिटी बोले तो सिंपल इसमें विस्कोसिटी इज अ सेमी फ्लूइड, और उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है और एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट में Na आता है, Na बोले तो सोडियम आता, 2 नंबर पे मैग्नीशियम आता, 3 नंबर पे पोटेशियम आता, 4 नंबर पे कैल्शियम आता। फिर प्लाज्मा बोले तो क्या, प्लाज्मा में लिक्विड होता है प्रेजेंट जिसमें 90% ऑफ consist of water and 6.8% consist of protein. प्रोटीन में कौन से प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, फाइब्रोनोजिन, तीनों भी प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट लिस्ट में अभी इसमें एग्जैक्टली प्रोटीन कौन से है, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, तीनों के भी अपने इसमें जब स्लाइड देखोगे तब डायग्राम अपने को दिए हुए। ठीक है, डायग्राम देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला इट हेल्प्स इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। किसको, ग्लोबुलिन को। फाइब्रोनोजिन को क्या बोला है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन को क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन द बॉडी। चलो ये तीनों चीजें थोड़े से अपन डीपली सीखने की कोशिश करते हैं। फाइब्रोनोजिन क्या बोला है उन्होंने, फाइब्रोनोजिन बोला है। ठीक है, फाइब्रोनोजिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बोले तो क्या, ब्लड को क्या करते हैं अपन, देखो आपने इसमें भी ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होता है बोले तो क्या होता है, एक सिंपल में ये समझा आपने को, थोड़ी कहाँ पे एक आधी जख्म हो जाती है। जख्म बोले तो क्या, लग जाता है कभी हाथ को तो हाथ को लगने के बाद थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लड का एक छोटा सा दाग आता है। जो दाग बोलते हैं उसको कुछ नहीं बोलते अपन, क्लॉट होना बोलते हैं। वो चीज में ब्लड क्लॉट करने में कौन मदद करता है, फाइब्रोनोजिन मदद करता है। फाइब्रोनोजिन कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन है ये फाइब्रोनोजिन, अपना प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, ये एक चीज हुई। सेकेंड बोले तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या मदद करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो एक आधे बार अपने को क्या हो जाता है, सिंपल में अपने इसमें एक ऐसी पकड़ लेते हैं कि अपने को सर्दी हुई है। क्या हुई है, सर्दी हुई है। सर्दी होने के बाद अपन वो सर्दी को फाइट करने के लिए अपने खुद को बॉडी का क्या करते हैं, डिफेंस तैयार करते हैं। देखो अपना भी होता है ना, जब आपने एक आधे समझा एग्जाम्पल में एक आधे अपने दोस्त के झगड़े हो जाते हैं। झगड़े होने के बाद क्या होता है कि वो समझा मारने लगा तो अपन भी डिफेंस में एक दो बुक्के रख देते हैं उसको, या फिर एक दो चमाट मार देते हैं। इस हिसाब से ग्लोबुलिन भी वैसे ही करते हैं। जब उसके
अपोजिट कौन से फॉरेन मटेरियल बॉडी, फॉरेन मटेरियल बॉडी बोले तो क्या, फॉरेन मटेरियल बॉडी बोले तो वायरसेस, बैक्टीरिया, ये जब अपने बॉडी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना पड़ता है, वो कौन करता है, ग्लोबुलिन करता है। फिर अल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन कुछ भी नहीं करता, एल्ब्यूमिन सिंपल में एक ही चीज करता है, वो बोले तो क्या, वाटर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। क्या करता है, वाटर मेंटेनेंस। H2O मेंटेन करना बोले तो क्या, बॉडी में अपने पूरे इसमें बॉडी में 70% वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 70% वाटर प्रेजेंट है। वो 70% के नीचे एक भी परसेंट गया तो एल्ब्यूमिन बोलता है कि ये मुझे वाटर ये करना है, ये करना है, वो करना है। और वाटर में सिर्फ वाटर प्रेजेंट नहीं रहते, उसमें एलिमेंट्स डिसॉल्व हुए रहते। कौन से एलिमेंट्स डिसॉल्व हुए रहते, अपने Na+ और एग्जैक्टली तुम्हारे मैग्नीशियम और उसके साथ पोटेशियम, ये तीनों भी चीज होते हैं। इसके बाद आगे ब्लड में, ब्लड विदाउट प्लाज्मा ब्लड सेल कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी। बट ब्लड इतना क्लॉट, क्योंकि क्लॉट में क्या विस्कोसिटी प्रेजेंट है, बोलते तो सेमी फ्लूइडिटी प्रेजेंट है, इस वजह से वो आर्टरीज के छोटे छोटे सर्कल से नहीं जा सकता, उसको पहले एक बार इसमें डिसॉल्व होना पड़ेगा, फ्लूइड में डिसॉल्व होने पड़ेगा। एग्जांपल चलो ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म एकदम शॉर्ट में आपको समझा ही देता हूँ। कैसा मैकेनिज्म है, देखो ब्लड को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आरबीसी रहते। क्या आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है अपना, रेड ब्लड सेल। आगे आएगा ही अपने को, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होते हैं। किस में डिसॉल्व होते हैं, बॉडी फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होने के बाद ये दोनों डिसॉल्व होते और किधर जाते हैं, अपने आर्टरीज में जाते हैं। किधर जाते हैं, अपने आर्टरीज में। ये दोनों मिक्स होते, मिक्स होने के बाद किस में जाते हैं, आर्टरीज में जाते हैं। और आर्टरीज में वो जाने के बाद वो ऑक्सीडेटेड ब्लड किसको कैरी करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन को या स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक एक आधे समझा सेल को, स्पेसिफिक टिश्यू को, ये सब जन क्या करते हैं, सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, ये जो क्लियर फ्लूइड है जो सेपरेट होता है क्लॉटिंग करने के बाद, क्लियर फ्लूइड जो सेपरेट होता है, सेपरेट करते हैं क्लॉटिंग करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सीरम का भी अपना फोटो वहां पे दिए हुआ है पूरे, इसमें आपको ब्लड सेल। और हमेशा एक याद रखो, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये हुई आपकी स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 के बाद मैं आपको स्लाइड नंबर 2 सिखाता हूं। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में ब्लड बोले तो क्या बोला आपको, ब्लड के बाद प्लाज्मा बोले तो क्या बोला, प्लाज्मा के बाद आपको उसके बाद आर्टरीज के बाद उसके ग्लोबुलिन का फैक्टर, फाइब्रोजिन का फैक्टर और एल्ब्यूमिन का फैक्टर सिखाया। आरबीसी और ब्लड फ्लूइड कैसे कैसे कैरी होते, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते, वो सिखाया। सीरम बोले तो क्या, सीरम बोले तो क्या भी सीखा है। सीरम में क्या होता है, सीरम में कुछ भी नहीं होता है, क्लियर फ्लूइड होता है जो ब्लड के वेट, क्लियर बोले तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, वो चीज को अपन, और इसमें समझो क्लॉटिंग फैक्टर मिक्स होते, वो सब चीज सेपरेट करने के बाद अपने को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सीरम बोलते हैं। तो अभी एलिमेंट्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, 1 नंबर पे इरिथ्रोसाइट प्रेजेंट है, 2 नंबर पे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है, 3 नंबर पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तीनों भी एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट है। तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के बाद नंबर 1 में इरिथ्रोसाइट्स बोले तो क्या, इरिथ्रोसाइट्स इज नथिंग, इरिथ्रोसाइट्स में सीधा सीधा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और ये सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन एक ही है, क्या करने का, ऑक्सीजन कैरी करने का। द मेन फंक्शन क्या है उनका, ऑक्सीजन कैरी करने का, किससे, लंग से टिश्यू तक, और उनको फिर से ट्रांसपोर्ट करने का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म टू द लंग्स व्हेन इट इज एक्सक्रीटेड। चलो इरिथ्रोसाइट्स थोड़े से डीप में सीखते हैं। इरिथ्रोसाइट्स को अपन दूसरा वर्ड भी दिया हुआ है, इरिथ्रोसाइट्स को अपन क्या बोलते हैं, सीधे सीधे इसमें आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स को अपन, आरबीसी। अभी बहुत सारे जनों को आरबीसी का फुल फॉर्म पता ही होगा। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, और यू मे नो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कुछ किताब में कॉर्पसल्स दिया हुआ है, कॉर्पसल्स भी ठीक है। ये बनते कहां पे, ये फॉर्म कहां पे होते, तो ये कौन से ऑर्गन में फॉर्म होते, ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते। किस में डिस्ट्रॉय होते, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते। और बोन मैरो में क्या होते, फॉर्म होते। किस में फॉर्म होते, बोन मैरो में फॉर्म होते। बोन मैरो में क्या होते, फॉर्म होते। तीसरी चीज, इनमें इसमें सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होते हैं,
इनॉर्मसली मोस्ट अबंडेंटली म्हणजे प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? ह्यूमन बॉडी में। बाद में मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी हीमोग्लोबिन, इज टू कैरी हीमो। सबसे पहले द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोले तो क्या? अभी ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, चलो ठीक है। हीमोग्लोबिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ग्लोबुलिन फैक्टर सीखा था, ठीक है। हेम प्लस ग्लोबुलिन, हेम में क्या आता है? एफई, एफई बोले तो क्या? फेरस। ग्लोबुलिन में क्या आता है? प्रोटीन। तो इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा, तो ये भी बोल सकते हैं जिसमें क्या आता है? प्रोटीन आता है, और जिसमें आयन आता है, जो उससे कंपाउंड तैयार करते हैं, वो चीज को मैं क्या बोलता है? हीमोग्लोबिन बोलता है। क्या बोलता है वो चीज को? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, अभी इसमें इनका फंक्शन क्या है? इन दोनों का भी फंक्शन, आरबीसी का भी हो या फिर हीमोग्लोबिन का भी हो, इन दोनों का भी फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल पार्ट ऑफ एन बॉडी and tissue, and also transport carbon dioxide and waste product to the lungs where it is excreted। चलो ये अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूँ। ये ऐसी पकड़ के चलो, ये लंग्स है अपने, क्या है ये? लंग्स है। लंग्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है अपना? ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन आता? आरबीसी आती। कौन क्या आता? यहाँ पे आरबीसी आती। आरबीसी क्या करने की कोशिश करते हैं? आरबीसी कैरी करते, क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होने के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्गन, एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन का, किडनी लेते हैं या फिर लीवर लेते हैं। अभी लीवर एक ऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर ले रहा, तो वो कुछ ना कुछ बाहर तो छोड़ेगा ना। वो जो बाहर छोड़ता, वो ब्लड को अपन कौन सा ब्लड बोलते? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में नीली लाइन से ये कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, तो अभी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी करने वाले अपन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्टली ये आरबीसी क्या करते हैं? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से किधर कैरी करते हैं? अपने डायरेक्टली लंग्स में कैरी करते हैं। इस हिसाब से सर्कुलेशन होता है किसका? ब्लड का। अभी सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब ठीक है, पर अभी ये जो आरबीसी ऑक्सीनेटेड जो ब्लड कैरी करने वाले, वो चीज को कुछ नहीं बोलते, वो चीज को सिंपल इसमें आर्टरी बोलते। क्या बोलते हैं इसको? आर्टरी बोलते। बोलते जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाने वाले उन चीज को क्या बोलूंगा मैं? आर्टरी बोलूंगा। और ये जो ब्लू कलर की मार्किंग है, उस चीज को जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करने वाले, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो चीज को अपन क्या बोलते? वेन बोलते। और ये होता है अपना ब्लड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसको क्या बोलता मैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बोले तो जिस टाइम पे अपन क्या करते, जब ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड के साथ और वो आरबीसी कैरी करता है किसको? एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड लेता है और फिर से टारगेटेड ऑर्गन की तरफ से लंग्स की तरफ जो लेके जाता है, ये पूरे सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। चलो, तो ये सेकेंड स्लाइड में इरिथ्रोसाइट बोले तो क्या उन्होंने बोला था? इरिथ्रोसाइट का फंक्शन भी बोला था, और मैंने आपको एक्स्ट्रा में उसके बारे में और एक मैकेनिज्म भी सिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको ल्यूकोसाइट बोले तो क्या बोलेगा उन्होंने? ल्यूकोसाइट में क्या क्या आते हैं? ल्यूकोसाइट का फुल फॉर्म बोले तो क्या, और एग्जैक्टली ल्यूकोसाइट कितने इसमें क्लासिफाई होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म में। ल्यूकोसाइट सबसे पहले, ल्यूकोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल आर द सेल्स ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम that fight against the infection and protect our body from infections, diseases and foreign material. Let me know what do you mean by सबसे पहले ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को दूसरा नाम क्या है, ये सबसे पहले आपको पता करना चाहिए। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम है WBC। क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट को अपन? WBC भी बोल सकते हैं या फिर व्हाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें और मैकेनिज्म ही यहाँ पे सिखा रहा हूं, क्योंकि
पूरा स्लाइड रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले 10 स्लाइड में दिए हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में स्लाइड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले ल्यूकोसाइट किसके अगेंस्ट फाइट करते, इम्यून सिस्टम बनाने की कोशिश करते और प्रोटेक्ट को इन्फेक्शन करते। बोले तो सिंपल सिंपल में क्या चीज है, ये भी मैकेनिज्म सिखा देता हूं। अभी क्या होता है, सबसे पहले कभी कभी आपने को भी होता है, देखो क्या होता है, कभी कभी आपने को सर्दी हो जाती है या फिर खांसी हो जाती है या फिर टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, खांसी होना, सर्दी होना, टेम्परेचर होना, तो उस समय पे डब्ल्यूबीसी आते और वो इन्फेक्शन जो कुछ वायरस है, वो कुछ बैक्टीरिया है, उनसे क्या करने की कोशिश करते हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं। फाइट करने के बाद उनके अगेंस्ट अपनी क्या तैयार करने की कोशिश करते हैं, इम्यूनिटी तैयार करने की शक्ति करते हैं। इम्यूनिटी, इसको मराठी में रोग प्रतिकार शक्ति भी बोलते हैं। फिर से एक बार बोलता हूं, यहाँ पे ड्रॉ भी करके बताता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है तो ये बोल देता हूँ, समझा कि समझा, ये वायरस सेल है। कौन से सेल है, ये वायरल सेल है, ब्लैक कलर में आए हुए वायरस सेल है, ओके। इन्होंने बॉडी पे क्या किया, अटैक किया। बॉडी पे अटैक करने के बाद अपने को क्या हुआ, सर्दी हुई, जुकाम हुआ और उससे अपन 2-3 दिन परेशान अच्छे अच्छे करते फिर रहे, ओके। तो फिर 2-3 दिन बाद क्या होता, अपने यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आते। कौन आते, डब्ल्यूबीसी आते। डब्ल्यूबीसी कौन से सेल लेके आते, इम्यूनिटी सेल लेके आते। कौन से सेल लेके आते, इम्यूनिटी सेल। अगले जब अपन तुम लोग नेट क्रॉस करोगे या फिर अपने एक आधे समझ मेडिकल का कोर्स को आएंगे तब समझ में आएगा, यहाँ पे टी सेल और बी सेल ऐसी दो चीजें रहते हैं, ये इम्यूनिटी सेल का पार्ट रहता है। ये इम्यूनिटी सेल क्या होते हैं, खुद डब्ल्यूबीसी तैयार करते और वायरस पे क्या करने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब वो अटैक करेंगे तो वो क्या करते, वायरस के सेल को खा जाते हैं, सीधा सीधा वायरस के सेल को क्या करते हो, खा जाते हैं। अभी जब खाना ही है तो फिर पूरा खा जाते हैं उनको, बोल तो थोड़े थोड़े उनके डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, ऐसी करके पूरे ये जो अपने जो इन्फेक्शियस सेल है, वो इन्फेक्शियस सेल को खाने के बाद पूरी उनकी कॉलोनी कम हो जाएंगे। और जब ये वायरस की डिक्रीजमेंट हो जाती, क्या हो जाता, वायरस की कॉलोनी कम हो जाती तो अपने को अच्छा होने लगता, बोले तो वी फील बेटर। और ये चीज कुछ नहीं है, अपना सिंपल सिंपल मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का, या फिर डब्ल्यूबीसी जो इम्यूनिटी बिल्टअप करते वो चीज का। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें उन्होंने ऐसा बोला है, क्लासिफिकेशन भी दिया है, बोले तो डब्ल्यूबीसी दो इसमें डिवाइड होती है, एक नंबर पे ग्रेनुलोसाइट और 2 नंबर पे अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट आगे चल के 3 इसमें डिवाइड है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, डेसिनोफिल। और अग्रेनुलोसाइट 2 इसमें डिवाइडेड है, विच इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। अभी सबसे पहले पूरे इसमें मैं आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक बोले तो क्या, फैगोसाइटोसिस बोले तो क्या, फैगोसाइटोसिस इज नथिंग। फैगोसाइटोसिस बोले तो सिंपल इसमें डिफाइन करना होगा, फैगोसाइटिक में जब एक खादा वायरस अपने इम्यूनिटी को क्या करने की कोशिश करता, अटैक करने की कोशिश करता, फिर बाद में अटैक करने के बाद अपन एक डिफेंस सेल तैयार करने की कोशिश करते, वो सब प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते या फिर फैगोसाइट बोलते हैं। दूसरे इसमें ये फैगोसाइट होने के बाद नेक्स्ट टर्म उन्होंने बोला है कि क्या बोला है उन्होंने कि बेसोफिल्स कितने साइज में होते हैं, अपना डायरेक्टली 12 to 15 माइक्रोन में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, 12 to 15 माइक्रोन में प्रेजेंट रहते हैं। और उनका डायमीटर में हिपेरिन, हिस्टामिन एक्सेट्रा आर द केमिकल इंड्यूस। हिस्टामिन और हिपेरिन ये दोनों भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या ट्रांसमीटर है, हिपेरिन और हिस्टामिन, ये जो है अपने वो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर के टॉपिक में अपने को बोले हुए मैंने कि रिसेप्टर बोले तो क्या, ये दोनों भी एक रिसेप्टर है।
क्या है? एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर बोले तो जो भी चीज बाहर से आती उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने इसमें न्यूरॉन नाम की चीज प्रेजेंट रहती है, उसको अपन सेंसर न्यूरॉन भी बोलते हैं। हाँ, सेंसर न्यूरॉन बोलते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो ये भी एक रिसेप्टर है, उनमें उसके आगे वो पास करके रिसेप्टर में पास करने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से अपने इसमें दो न्यूरो रिसेप्टर होते हैं जो किसको इंड्यूस करते हैं? इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करना बोले तो क्या? इंड्यूस करना बोले तो कम करना। इसके बाद eosinophil are found in the bone marrow. It act as an antiparasitic and participate in allergic reaction. Lymphocytes are of two types, B and T lymphocyte. They fight with disease. सबसे पहले अपने को ये इसमें मैकेनिज्म में और एक चीज समझना पड़ेगी, बोले तो क्या? ये मैकेनिज्म में समझने के लिए जो अपने इसिनोफिल्स है वो किसमें होते हैं? इसिनोफिल्स अपने डायरेक्टली एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं और एंटी पैरासाइटिक है। एंटी पैरासाइटिक बोले तो क्या? पैरासाइट बोले तो क्या? सिंपल में पैरासाइट इज नथिंग, पैरासाइट इज वर्म टाइप इंफेक्शन। वर्म टाइप इन्फेक्शन। वर्म टाइप इन्फेक्शन बोले तो क्या? जिसमें मराठी में इसको फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं हमारे इसमें। और वो एलर्जिक रिएक्शन में, मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है और वो एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी चीज है अपने इसमें बोलने जैसी, क्या बोल सकता हूं मैं कि वो दो टाइप में प्रेजेंट होते हैं। वो बोले तो एक पी और दूसरा टी। बोले तो बी और टी लिम्फोसाइट किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये स्लाइड नंबर 5 में बोले हुए। फिर बाद में 6 नंबर के स्लाइड में प्लेटलेट्स के बारे में बोले हुए। प्लेटलेट्स बोले तो क्या? प्लेटलेट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता और उनकी चीजें कैसे कैसे। सबसे पहले प्लेटलेट्स में एग्जैक्टली ब्लड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। Thrombocyte because they secrete thromboplastin. There are the smallest blood corpuscle. Thromboplastin बोले तो सिंपल में उन्होंने बोले हुआ है कि स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसल है, तो वो क्या सिक्रेट कर रहे हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट कर रहे हैं। क्या सिक्रेट कर रहे हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट कर रहे हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले तो क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नथिंग, जब अपने इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट है, थ्रोम्बोप्लास्ट एक क्या तैयार करने की कोशिश कर रहा है? एक प्रोटीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वो चीज को मैं क्या बोलता हूँ? डायरेक्टली थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? चीज को मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता हूँ। बोले तो सिंपल इसमें ये चीज को मुझे बोलना होगा तो एक बोल सकता हूँ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले तो ब्लड प्लेटलेट्स में एक थ्रोम्बोसाइट नाम की चीज प्रेजेंट रहती है, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट है। अभी बहुत सारे जनों को थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले तो क्या पता नहीं होगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में एक कंटेंट है अपने सेल में, जो कंटेंट में ऐसा बोलते हैं कि इसमें थ्रोम्बोकाइनेसिस का मिक्सचर है। किसके साथ? फॉस्फोलिपिड के साथ। आपको थ्रोम्बोकाइनेसिस बोले तो क्या? जो किसके काम आता है? अपने ब्लड कोआगुलेशन के इसमें काम आता है, उसको थ्रोम्बोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें एक प्रोटीन का पार्ट, या फिर आपने सिंपल इसमें इसको एक प्रोटीन का पार्ट ही बोलो, ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है। सेकेंड, ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उनमें, ओवल शेप के, बायकॉन्केव है, बायकॉन्केव लाइक बॉडी। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 0.15 to 0.40 million cubic millimeter of the blood. They produce from the cytoplasm of large megakaryotic cells of bone marrow. megakaryotic cells ये भी एक प्रोटीन का ही पार्ट है। चलो ठीक है, ये इसमें मैं आपको एक छोटे चीजें में एक लिख के बता देता हूँ या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें थ्रोम्बोसाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या सिक्रेट करते हैं? एक नंबर पे क्या सिक्रेट करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करते हैं।
क्या सीक्रेट करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ये किससे बैठता है? थ्रोम्बोकाइनेस से मिलता है। किससे तैयार होता है? थ्रोम्बोकाइनेस से। थ्रोम्बोकाइनेस से क्या है? थ्रोम्बोकाइनेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं। और वो एक स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसेल्स है। ठीक है, वो बाद में नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड बोलते हो न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओवल शेप बोले तो अंडा शेप, बाइकॉनकेव डिस्क, बाइकॉनकेव डिस्क बोले तो डायरेक्टली ये ऐसी सबसे होती है बाइकॉनकेव डिस्क, बाइकॉन्वेक्स सॉरी, मिलीमीटर में प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोड्यूस किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। मेगाकैरियोटिक सेल बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। मैंने स्लाइड नंबर 6 में आपको प्लेटलेट सिखाया। प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट से तैयार होती है, ये भी सिखाया। उनमें थ्रोम्बोप्लास्ट, चलो तो प्लेटलेट्स बोले तो क्या? ब्लड प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो क्या? थ्रोम्बोसाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है? थ्रोम्बोसाइट क्या सीक्रेट करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले तो क्या? ये बहुत सारे जनों को अभी डाउट आया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे इजी इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में ये एग्जैक्टली थ्रोम्बोप्लास्टिन दो चीज से बना है। किस चीज से बना है? दो चीज से। थ्रोम्बोप्लास्टिन में एक नंबर पे बना है थ्रोम्बोकाइनेस और दो नंबर पे प्लास्टीन, या फिर ये प्लास्टीन को अपन फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बोले तो क्या? लिपिड, लिपिड ये कुछ भी नहीं, लिपिड ये फैट होता है। फॉस्फो बोलने की गरज नहीं है, फॉस्फो बोले तो फॉस्फोरस होता है, ये एलिमेंट है। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और वो एक स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसल के पार्ट है। शेप में नॉन न्यूक्लिएटेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड बोलते न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओवल शेप के बाइकॉन्वेक्स प्रेजेंट है। बाइकॉन्वेक्स बोले तो क्या? ये ऐसी हिसाब से, ये चीज को बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। इसके बाद इनमें नंबर वेरीज होते 0.15 टू 0.40 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और वो प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज मेगा कैरियोटिक सेल प्रेजेंट है बोन मैरोस। बोन मैरोस में और एक चीज बोली थी मैंने, बोन मैरोस में आरबीसी भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैंने स्लाइड नंबर 6 में आपको बोला प्लेटलेट्स बोले तो क्या, थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले तो क्या, वो कहां पे प्रेजेंट होते, कौन से शेप के होते, कितने नंबर में होते, ये सब चीजें मैंने सिखाई। अभी आपको असाइनमेंट दिया है। पहला असाइनमेंट का आंसर, ब्लड इज अ ट्रांसपेरेंट रेड फ्लूइड, इज इट ट्रू और फॉल्स? उसका आंसर फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, फाइब्रोनोजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। उसका आंसर ट्रू है। उसका आंसर क्या है? ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, बेसोफिल्स पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स? उसका आंसर फॉल्स है। उसका आंसर क्या है? फॉल्स है। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं ब्लड ग्रुप पे। एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप बोले तो क्या, ब्लड ग्रुप कौन से इसमें होते हैं और एग्जैक्टली उसकी ग्रुपिंग कैसी होती है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप में देयर आर टू ब्लड ग्रुप, ABO एंड RH ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप में तीन मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो बोलते तो कौन से? RBC विच इज कॉल्ड एज अ रेड ब्लड सेल, WBC विच इज कॉल्ड एज अ व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। तो ABO ग्रुपिंग क्या रहती है? ABO on the basis of antigen and antibodies, there are four types of ABO grouping. They are called as A, B and A, B, AB and O. ऐसी चार प्रकार होते हैं।
अभी एग्जैक्टली ये सब चीजें ठीक है, सिंपल है। अभी इसमें एंटीजन बोले तो क्या और एंटीबॉडी बोले तो क्या, ये आपको पता चाहिए। एंटीजन एग्जैक्टली क्या होता है और एंटीबॉडी बोले तो क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए अपने को इसमें एग्जैक्टली एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए उनके डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, बराबर है ना। तो चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एंटीजन बोले तो क्या और एंटीबॉडी बोले तो क्या, ये दोनों डेफिनेशन आपको बताने की या समझाने की कोशिश करता हूं। एंटीजन, एंटीजन ये है, ये सही में बोलो तो अपने लिए फायदा कौन करते, एंटीजन करते या फिर एंटीबॉडी करते, अपने को फायदा कौन करने वाले, एंटीजन करने वाले या फिर एंटीबॉडी करने वाले। ये सब के लिए आपको मेरे डेफिनेशंस ध्यान से सुनना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे डेफिनेशंस ध्यान से सुनना पड़ेंगे। जो अपने इसमें एंटीबॉडी को डिफाइन करने के लिए जो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन, अपने को एंटीबॉडीज कंपलसरी होते हैं। क्या कंपलसरी होते हैं, अपने को एंटीबॉडीज कंपलसरी होते हैं। और ये एंटीबॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट क्या करने का काम करते हैं, फाइट करने का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट क्या करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, फाइट करने का नहीं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। सपोर्ट करने का काम करेंगे और तब किन पे अटैक करेंगे, वो वायरल सेल पे अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे, वायरल सेल पे अटैक करेंगे। और उनमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, उनकी इम्यूनोग्लोबुलिन करता है। कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का फुल फॉर्म क्या है, ओके आई विल गो विथ मोर सिंपल कॉन्सेप्ट। इम्यूनोग्लोबुलिन के इसमें फुल फॉर्म में दो चीजें प्रेजेंट रहते हैं। एक बोलो तो क्या प्रेजेंट है इसमें, इम्यून सेल प्रेजेंट रहते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं, इम्यून सेल प्लस ग्लोबुलिन शेप प्रेजेंट रहता है। कौन सा शेप प्रेजेंट रहता है, ग्लोबुलिन शेप। इम्यून सेल में कौन से सेल आते हैं, दो प्रकार के सेल आते हैं। एक बोले तो कौन से, टी सेल, और दूसरा बोले तो कौन सा, बी सेल, और बाद में न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। ग्लोबुलिन शेप बोले तो कौन सा शेप, सर्कुलर शेप, उसे ग्लोबुलिन शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है। इसके बाद आगे चलता हूं, तो फिर एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या हुई। एंटीबॉडी की डेफिनेशन सिंपल हो गया अपने लिए। एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज immunoglobulin or protective protein produced by the immune system in response to the foreign attacks. In response to the foreign attacks, बोले तो जब अपने बॉडी पे कोई क्या करता, अटैक करने की कोशिश करता है, तब एंटीबॉडीज आते हैं और उनके अगेंस्ट क्या करने की तैयारी करते हैं, अटैक करने की तैयारी करते हैं। चलो, और सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस इन द blood to fight against the disease is called as antibody. मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, वैसी एंटीबॉडी बोले तो सब्सटेंस, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार, सब्सटेंस which are, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार ठीक से सुनो मुझे, सब्सटेंस which are produced in the body to fight against infections. Substance which are produced in a body to fight against infection. फिर एंटीजन बोले तो क्या, एंटी और जीन नहीं रहता है, एंटीजन। एंटीजन क्या रहता है, एंटीजन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, अभी चलो जो कुछ एंटीबॉडी के अपोजिट होता है उसको एंटीजन बोलते हैं। ये तो सिंपली तुमको और मेरे को दोनों को भी समझ में आता है, पर उनको प्रॉपर इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रॉपर इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। चलो, अ सब्सटेंस दैट enter the body and start the process that can cause disease is called as antigen. बोले तो क्या, अभी चलो, जब अपने बॉडी में अपन
बैक्टीरियल सेल या फिर वायरल सेल एंटर होते और अपने को डिजीज कॉज करने की कोशिश करते, वो चीज को अपन क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन लिख के देता हूं यहाँ पे, ठीक से देखो, क्योंकि ये दो कंसेप्ट समझे तो ही ब्लड ग्रुपिंग समझेंगी, नहीं तो ब्लड ग्रुपिंग अपने को समझेंगी नहीं। इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेस दे रहा हूं और आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एंटीजन बोले तो क्या, एंटीजन बोले तो सब्सटेंस दैट एंटर, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार, सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द डिजीज और विच कैन कॉज डिजीज। सब्सटेंस which produce in a body to cause infection, डिजीज के जगह पे इन्फेक्शन लिखते हैं। अभी सिंपल सिंपल में ये क्या हुआ, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपने को समझ में आया। आया, एंटीबॉडी क्या करते हैं, अपोजिट होते हैं, किसके अपोजिट होते हैं, एंटीजन के अपोजिट होते हैं। एंटीबॉडी इज अपोज ऑफ, क्या बोलता मैं, एंटीजन के, किसके अपोजिट रहते हैं, एंटीजन के अपोजिट रहते हैं। बोले तो अभी कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, एंटीजन ये डिजीज को सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, डिजीज या इन्फेक्शन को, किसको सपोर्ट करते हैं, ये डिजीज और इन्फेक्शन को। तो फिर एंटीबॉडी क्या करते, ये अपोज करते, क्या करते, ये अपोज करते, किसको, डिजीज को या फिर इन्फेक्शन को, किसको अपोज करते, ये डिजीज को नहीं तो इन्फेक्शन को। मैं दो बार इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको क्लियरली मेरा आवाज और क्लियरली मेरी क्लेरिफिकेशन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझनी चाहिए, इसके लिए मैं दो बार रिपीट कर रहा हूं। ओके चलो, तो आगे अपने को ब्लड ग्रुपिंग सीखनी है। ब्लड ग्रुपिंग में इन्होंने एक टेबल दिए हुआ है, एक टेबल दिए हुआ है जिसमें ब्लड ग्रुप दिए हुए, एंटीजन्स ऑन आरबीसी दिए हुए, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा दिए हुए और डोनर्स ब्लड ग्रुप दिए हुए। अभी सबसे पहले ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बोले तो क्या, ये आपको बचपन से पता है। एंटीजन्स ऑन आरबीसी, एंटीजन्स ऑन आरबीसी बोले तो जो कौन से डिजीज कॉजिंग इन्फेक्टिव एजेंट है आरबीसी को, उसको बोलते हैं। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते उसको बोलेंगे अपन। डोनर्स ग्रुप बोले तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको डोनेट करने के बाद अपने को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। ये चारों चीजें वो टेबल में प्रेजेंट है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप बोले तो ब्लड ग्रुप की इसमें टेबल में ए बी और ओ दिए हुए, ठीक है। उसके बाद उसमें और एक चीज दी हुई है, वो बोले तो क्या दी हुआ है, सबसे उसके बाद में सेकेंड टेबल में एंटीजन दिए हुए, एंटीजन ऑफ आरबीसी, और 3 नंबर पे एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा और डोनर्स ग्रुप दिए हुए। तो एंटीजन के हिसाब से अपना क्या डिस्क्राइब होता, ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब होता, क्या डिस्क्राइब होता, अपना ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब होता। देखो आप टेबल ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एंटीजन ऑन द आरबीसी ए और ब्लड ग्रुप अपना ए रहता है। डोनर कौन लगता है, एक तो ए ब्लड ग्रुप का डोनर लगेगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप का डोनर लगेगा। कौन लगेगा, ए ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप। वैसे ब्लड ग्रुप बी को भी, ब्लड ग्रुप बी में जो ऑब्जर्व करोगे तो एंटीजन आएगा किसका, आरबीसी का। एंटीजन ऑफ आरबीसी किसका दिखेगा अपने को, डायरेक्टली बी का ही दिखेगा। और एंटीबॉडीज कौन से दिखेंगे अपने को, एंटी ए दिखेंगे। और साथ में उधर डोनर ग्रुप कौन सा रहेगा अपना, डोनर ग्रुप एक ही रहेगा। कौन सा रहेगा अपना, एक तो बी रहेगा नहीं तो ओ रहेगा। उस हिसाब से ब्लड ग्रुप ऑफ ए और बी में एंटीजन कौन से प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट है, क्या नहीं है, नील है। और डोनर्स ग्रुप कौन से प्रेजेंट है, ए बी और ओ। और तो चारों तरफ से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी का भी चलता है। इस वजह से ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। उस हिसाब से दूसरा ब्लड ग्रुप है अपना ओ वाला ब्लड ग्रुप ओ, उसमें एंटीजन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ब्लड ग्रुप और एंटीजन सिमिलर ही है।
उसमें और एक चीज बोली थी उन्होंने, क्या बोले हुए उन्होंने, डायरेक्टली सिंपल इसमें एंटीबॉडीज एंटी ए एंड बी प्रेजेंट है और डोनर्स ग्रुप क्या प्रेजेंट है, डोनर्स ग्रुप में उसके ओ प्रेजेंट है। बोले तो ओ ही एक चीज ऐसी है जो ओ को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। इस हिसाब से ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी हुआ, और यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ अपना, डायरेक्टली ओ हुआ। वही दो चीजें अपने ऊपर डिफाइन की हुई है। ये दोनों 8 नंबर की स्लाइड में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एंटीजन बोले तो क्या सिखाया, एंटीबॉडीज बोले तो क्या सिखाया। 4 ब्लड ग्रुप रहते, ए बी और ओ, उनमें एंटीजन्स प्रेजेंट रहते, एंटीजन प्रेजेंट रहने के बाद उनमें और क्या चीज प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होने के बाद उनमें डोनर्स ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ऑफ ए को कौन सा है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी रहेंगी, और डोनर्स ग्रुप कौन सा रहेगा अपना, ए और ओ रहेगा। बी में डायरेक्टली एंटीजन आरबीसी पे बी प्रेजेंट रहेंगे, एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट रहेंगे, एंटी ए प्रेजेंट रहेंगे, और तीसरी चीज डोनर्स ग्रुप कौन सा प्रेजेंट रहेगा, बी रहेगा या फिर ओ रहेगा। इस हिसाब से ब्लड ग्रुप में ए बी में कौन से ये प्रेजेंट रहेंगे अपने, ए बी में सिंपल में ए और बी एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे और एंटीबॉडीज नील रहेंगी। इस वजह से उनमें डोनर्स में उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि कौन सा भी ब्लड ग्रुप उसको चलता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि किसको भी अपन ने देखा ऊपर के 2 टेबल में ए और बी के साथ ओ को एक्सेप्ट किया जाता है। इस हिसाब से ओ ब्लड ग्रुप में नील एंटीजन है, एंटीबॉडी एंटी ए बी है, और डोनर्स ग्रुप इसमें क्या प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने 9 नंबर की स्लाइड में आरएच ग्रुपिंग बोले हुए। आरएच ग्रुपिंग बोले तो क्या, आरएच ग्रुपिंग इसको डायरेक्टली सिंपल इसमें क्या कहते हैं अपन, रिएसिस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, रिएसिस फैक्टर कहते हैं। रेसिस फैक्टर क्यों कहते हैं, रेसिस फैक्टर में इसको सिंपल में अपने को डिफाइन करना होगा, तो इसको डायरेक्टली ये सबसे पहले एक रेसिस नाम का मंकी था, उससे ये डिजीज आई। ये डिजीज का मैकेनिज्म में अपने को 2 चीज पता होनी चाहिए थे, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अच्छी तरह से डिफाइन किया है। तो RH फैक्टर इज एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, इस वजह से तो अपन अपने ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। वो एंटीजन के इसमें इफ द RH antigen is present on those person are called as RH positive. If the RH antigen is absent on those person are called as RH negative. RH positive बोले तो क्या, RH positive सिंपल में डायरेक्टली जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अभी एंटीजन अपने को पता है फॉरेन बॉडी को सप्लाई करता या फिर फॉरेन बॉडी को क्या करता, सपोर्ट करता। बोले तो एंटीजन जिसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे अपन, RH पॉजिटिव। क्या कहेंगे यहाँ पे, RH पॉजिटिव। और जिसमें एंटीजन क्या है अपना, अब्सेंट है, एंटीजन क्या है अपना, अब्सेंट है, उसे क्या कहेंगे अपन, RH नेगेटिव। किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले रेसिस फैक्टर, रेसिस नाम के मंकी से हुआ, इससे हुआ, रेसिस नाम के मंकी से हुआ। दूसरा, RH group should be matched before blood transfusion because if RH negative person is exposed to the RH positive blood, then person with RH negative start forming antibodies against the RH antigen. यहाँ पे एक में का ब्लड सप्लाई होने के वजह से वहां पे मैच करना जरूरी है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। क्यों ट्रांसफ्यूजन करूंगा, चलो एग्जांपल देना पड़ेगा। मैं एक पर्सन हूं, मैं क्या हूं, पर्सन हूं, मैं नॉर्मल हूं, मेरे नॉर्मल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, RH नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा। क्या प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, RH नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। जब ये RH नेगेटिव मेरे में प्रेजेंट रहता है तो अभी ये RH नेगेटिव होने के बाद मुझे एक आधा RH पॉजिटिव क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन गलती से हो गया। क्या हो गया, गलती से हो गया, क्योंकि चेक नहीं किया तो RH ट्रांसफ्यूजन हो गया। अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, RH नेगेटिव में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से दोनों एंटीजन एक में के साथ क्या करते रहेंगे, फाइट करेंगे। क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और वो एंटीबॉडीज तैयार नहीं करने देंगे। क्या तैयार नहीं करने देंगे,
एंटीबॉडीज तैयार नहीं करने देंगे, और समझा एंटीबॉडीज तैयार नहीं होगा तो वो जो कौन सा पर्सन होगा या फिर वो पर्सन में भी होगा तो मुझ में सबसे ज्यादा क्या कॉज होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा, और इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से मुझे इम्यून सेल क्या होंगे, मेरे कम होंगे। क्या होंगे, मेरे इम्यून सेल कम होंगे। बोले तो इन शॉर्ट में मैं कौन से भी इसमें इन्फेक्शन को क्या हो जाऊंगा, सस्पेक्टेबल हो जाऊंगा। इस हिसाब से इसका मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म होने के बाद आगे सिंपल में और उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जांपल दिया है। ये प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है एग्जैक्टली और कैसी होता है। ये प्रेग्नेंट लेडी के इसमें सिंपल इसमें उन्होंने बोला है कि क्या बोले हुआ है, इफ द प्रेग्नेंट मदर हैज RH negative blood and fetus has RH positive, then there is no major problem in the first delivery. But the first delivery of the fetus blood intermingle with the mother's blood and mother start forming antibodies against the RH factor in her blood. अभी क्या होता है एग्जैक्टली, ये चीज क्या है, क्या है, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। अभी इसमें एग्जैक्टली सबसे पहले अपने को एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। मदर है, कौन है, मदर है। मदर का ब्लड कौन सा है, RH। मदर का ब्लड कौन सा है, RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव में क्या प्रेजेंट रहते हैं अपने, एंटीजन। और एंटीबॉडी दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं। अभी जो मदर का फीटस है, मदर का फीटस बोले तो क्या, मदर का एक आधा बच्चा है, वो फीटस में समझा RH कौन सा प्रेजेंट है अपना, सिर्फ RH पॉजिटिव प्रेजेंट है। पॉजिटिव प्रेजेंट है बोले तो इनमें एंटीजन प्रेजेंट है क्या, एंटीजन प्रेजेंट है क्या, हाँ एंटीजन प्रेजेंट है। पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या, नहीं, इनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इनमें एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव है। इस वजह से जब RH पॉजिटिव का ब्लड किसके साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा, मदर के साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा। किसके साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा, मदर के साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, तब जब इंटरमिंगल होना बोले तो क्या होना, मिक्स होने की कोशिश करेगा। मिक्स होने की कोशिश करने के बाद डायरेक्टली उनमें कुछ चेंजेस आने होंगे। कौन से चेंजेस आते हैं, सबसे पहले मदर स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH फैक्टर इन हर बॉडी। In the subsequently delivery, there is possibility that RH antibody from the mothers leaks into the blood of the fetus and destroys RBC of the fetus. This is called as erythroblastosis fetalis. This can be avoided by treating mother after the delivery of the first body. सिंपल में जब ये फिटस की बॉडी किस में मिक्स हो रही है, अपने मदर के ब्लड में मिक्स होने की कोशिश कर रही है, बोले तो पॉजिटिव कौन है, अपने फिटस से नेगेटिव के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये अट्रैक्शन होने का चालू हो जाएगा तो तीन चीज होंगी। क्या चीज होने वाली है, सिंपल में क्या तैयार होने वाले, RH एंटीबॉडीज तैयार होने वाले। क्या तैयार होने वाले, RH एंटीबॉडीज तैयार होने वाले। दूसरी चीज क्या होने वाली है, दूसरी चीज सिंपल में कि जो कुछ ब्लड प्रेजेंट है फीटस का, वो खुद की आरबीसी क्या करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्या करने वाला है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने वाली। और मेरे को सिंपल बोलो, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होने वाली तो कौन सी भी इम्यूनिटी या फिर कौन सा भी इंफेक्शन को वो क्या हो जाएगा, आराम से सस्पेक्टेबल हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और फर्स्ट डिलीवरी अच्छी होगी। पर सेकेंड डिलीवरी का इफेक्ट क्या होगा, जब भी कौन सा सेकेंड डिलीवरी होगी वो बच्चों की, वो बच्चा हमेशा मां के कोख में ही डेड हो जाएगा। ये सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक है RH फैक्टर का या फिर रेसिस फैक्टर का। चलो RH ग्रुपिंग भी होगी। आखिरी स्लाइड में रिप्रेजेंट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। कोगुलेशन बोले तो क्या, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म। बोलते जो लिक्विड ब्लड है जिसमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, उस चीज को मैं क्या बोलने वाला, डायरेक्टली
कोगुलेशन बोलने वाला। कोगुलेशन होने के बाद when the bloods come out from an injured vessel, the platelets clump together, break and release platelets factor। बोले तो जब कौन से अपनी चीज को, अपने को भी जख्म होती है तो ब्लड बाहर आता है, ब्लड बाहर आने के बाद 5-10 मिनट के बाद वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और वो ब्लड जब क्लॉट होता है तो उनका मैकेनिज्म कैसे होता है ये स्लाइड में अपन वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द प्लाज्मा इनटू थ्रोम्बिन। The enzyme thrombin is used to catalyze the conversion of soluble fibrinogen into insoluble protein fibrin and form the network over the injuries। अभी ये सब मैकेनिज्म करने के लिए अपने को प्रोथ्रोम्बिन जानना पड़ेगा। प्रोथ्रोम्बिनेज ये एक एंजाइम है जिससे तैयार हो, किसे, प्रोथ्रोम्बिन। ये एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिन से तैयार हुआ। वो क्या कन्वर्शन करता, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता। किसमें कन्वर्ट करता, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता। किसमें कन्वर्ट करेगा ये, थ्रोम्बिन में। कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कैटलिस्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कैटलिस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर बाद में ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्यूबल प्रोटीन क्या करेंगे, कन्वर्शन करेंगे। कौन से, अपने सोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रोनोजन इनटू इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिन। बोले तो कौन से इसमें सोल्यूबल प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे अपने, और इनसोल्यूबल प्रोटीन क्या तैयार करने की कोशिश करता है, इंजरी का नेटवर्क। और इंजरी का नेटवर्क तैयार करना बोल तो क्या, सेल को डायरेक्टली क्या करता, वो सेल को एक में के साथ कनेक्ट कर देता, टिश्यू फॉर्म करता और उस जगह पे हीलिंग हो जाती। और ये